Okay, so we'll start. Okay, so first of all, let me inform you about the class test. I can say that it is as a class test. It is on Friday. What is your schedule at 4 p.m. on Friday? Is there any schedule? Or you want this test in morning? Okay, I think lectures रहेंगे आपके, तो इसलिए मैं आफ्टर लेक्चर ही शेड्यूल करने वाला हूँ. Is there any schedule at 4 p.m. on Friday? That test is only for 20 minutes. Hardly 20 minutes की टेस्ट है. Is there any schedule on Friday? No, sir. Okay, so this is your first class test, ठीक है, which is on the complementary function. These are the topics. Complementary function, and second is shortcut method. Okay, आज आपकी ये मेथड हो जाएगी, shortcut method. So prepare only this, ठीक है. It is MCQ based exam. ठीक है. Total number of questions, there are 10 questions, ठीक है, and each question is of 2 marks. Each question is of 2 marks, so total marks or maximum marks is 20, ठीक है. और टाइम जो रहेगा आपका वो 4 to 4:20 ओनली. ओके, सो विल गेट ओनली 2 minutes फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है. और ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन होगा ही नहीं, आपको ओरली भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, और ये सारे MCQs आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, ठीक है. बट आप प्रैक्टिस के लिए, इफ़ यू वांट अ प्रैक्टिस, यू कैन रेफर द MCQs फ्रॉम निराली. आई विल शेयर ऑल दोज MCQs. ओके, MCQs फ्रॉम निराली जस्ट फॉर प्रैक्टिस. बट आपको सोल्यूशन निराली में नहीं मिलने वाला, ठीक है, या किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला. व्हाट आई विल डू आफ्टर दिस लेक्चर, अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर. आई विल शेयर ऑल द MCQs. एक ही स्लॉट में मैं सारे MCQs आपको दे देता हूँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, बट आपकी एग्जाम जो रहेगी, फाइनल एग्जाम, वो MCQ बेस्ड नहीं रहेगी. ओके, तो इसलिए आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज़्यादा प्रिपेयर करना है. इसलिए जो क्वेश्चंस भी रहेंगे उससे ऑलमोस्ट आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी. इसलिए, और मैथ्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता. अगर आप MCQ भी प्रिपेयर करते हो तो भी थ्योरी प्रिपेयर हो जाती है, बिकॉज दैट होल थ्योरी क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2-3 क्वेश्चंस व्हेन यू कंसिडर द MCQ, ठीक है. तो मैथ्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आप MCQ प्रिपेयर करो, थ्योरी प्रिपेयर करो, एट देन इट इज सेम, ठीक है. सो इट इज ऑन फ्राइडे. क्या डेट है फ्राइडे को? 22, I guess. Okay, so 22, this is time, ठीक है. Okay, and now we'll continue our topic. Okay, so I think last lecture we have started with this case number 5, that is the product of two function in which one function is e raised to x and second function is v. Okay, or basically, okay, so here we have considered the product of two function in which one function is exponential and second is any other function. Okay, so how you calculate particular integral for this type of function? So rule is like this. This is your formula. Okay, you have to just take this exponential function outside to this particular integral, correct, and replace d by d plus a, where what is this a? A is actually the coefficient of, just
just 1 minute. Okay, so a is actually the coefficient of x in the exponential term. Exponential term में जो x का coefficient है, that is your a. It may be positive, it may be negative, depend on the that given function. ठीक है, so just replace d by d plus a, then you will get something like this. Okay, तो e raised to x को आपने बाहर निकाला, तो ये end तक आपका वैसा ही रहेगा. Okay, and you have to just solve this next part. This is we call it as particular integral. You have to just solve this particular integral. ठीक है, ये आपको solve करना है. And to solve this, we have to use the previous cases of the shortcut method. I think we have completed one question also, so I will not repeat that question again. It's better that I will directly take the next example. Okay, so I hope it is clear to everyone. This is your complementary function, and your particular integral is 1 upon phi of t into e raised to ax. Okay, so ठीक है, मैं एक बार क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज योर फाई ऑफ डी? फाई ऑफ डी इज डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, एंड व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स. तो अब पहला आपका जो ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, व्हाई वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड से ही क्यों सॉल्व करना है? बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. ओके, एक्चुअली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वेयर वन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, where one function is exponential, that means it is of the type e raised to x into v. ठीक है, तो वो शॉर्टकट मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो रूल क्या आपका बेसिकली, सो इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आफ्टर दिस, so for e raised to x into v function, first of all you have to take this e raised to, I can say the exponential function outside to this particular integral, that is e raised to 2x, and then in the phi of d, then in the phi of d replace d by d plus a, where what is a? A is the coefficient of x, which is 2. So replace d by d plus 2. So this become 1 upon replace d by d plus a. So d plus 2 whole square minus 4 into d plus 2 and plus 3, correct? And into this x square as it is. Okay, now just simplify this part, so it become e raised to 2x multiplied by 1 upon, so if I simplify this, you will get d square plus 4d plus 4 minus 4d minus 8 plus 3 into this x square, and then it look like e raised to 2x multiplied by 1 upon this plus 4d minus 4d will get cancelled, and that is d square, and this 7 minus 8 is minus 1 into this x square. तो यहाँ तक आपने सॉल्व किया, ये पार्ट आपको अभी मिल गया. और मैंने इसके आगे आपको क्या बोला था कि यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय यूजिंग द प्रीवियस केसेस. ठीक है, तो प्रीवियस केसेस में क्या क्या लर्न किया? प्रीवियस केसेस में एक्सपोनेंशियल का पार्ट आपने लर्न किया, प्रीवियस केसेस में ए रेज टू एक्स का पार्ट आपने लर्न किया, और ए रेज टू माइनस एक्स का, और साइन का पार्ट आपने लर्न किया है, कॉस का पार्ट आपने लर्न किया है, साइन हाइपरबोलिक का लर्न किया है, कॉस हाइपरबोलिक का लर्न किया है, और लास्ट में पॉलिनोमियल फंक्शन था. तो कौन से केस से सॉल्व होगा? ऑब्वियसली इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको ये पॉलिनोमियल फंक्शन से सॉल्व करना है. और पॉलिनोमियल फंक्शन से सॉल्व करने के लिए रिजल्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ 1 upon 1 प्लस समथिंग और इन टर्म्स ऑफ 1 upon 1 माइनस समथिंग. तो ये डायरेक्टली 1 upon 1 माइनस के फॉर्म में ही आ रहा है, 1 upon 1 माइनस एक्स के फॉर्म में आ रहा है, बस आपको माइनस साइन एडजस्ट करना है. सो हियर इफ आई टेक दैट माइनस कॉमन, लेट मी इरेज दिस थिंग्स. ठीक है, सो हियर इफ आई टेक दैट माइनस कॉमन, then you will get is equal to minus e raised to 2x multiplied by 1 upon 1 minus d square into x square. Now just apply the formula for 1 upon 1 minus x that I will show you on next slide. ठीक है, so just apply the formula for 1 upon 1 minus x, then it become क्या formula आपके पास? 1 upon 1 minus x का formula 1 plus x square plus x cube and so on. All signs are positive, but here this polynomial has degree 3, therefore you have to consider the expansion up to degree 3 only. So यहाँ तक ही consider करो, then you will get minus e raised to 2x in bracket 1 plus x square plus x cube. आगे के टर्म्स आपको डिलीट करने, तो आप चाहो तो डॉट डॉट में डाल दो, इंटू एक्स क्यूब, है ना. एंड इफ आई सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट दिस. नाउ दिस इज 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी रेज टू 4 प्लस डी रेज टू 6 and dot 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 into this x cube. Again apply that same logic, as we know that this is a polynomial of degree 3, therefore all the derivatives whose order greater than 3, है ना, डिग्री 3 है, तो ऐसे डेरिवेटिव जिनके ऑर्डर ग्रेटर दैन 3 आ रही है, वो सारे डेरिवेटिव्स आपके 0 आने वाले हैं. सो देयरफॉर यू कैन डिलीट दिस d raised to 4 and d raised to 6, and then you will have e raised to 2x in bracket 1 plus
डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब. ओके, अंदर मल्टीप्लाई करो सो दैट यू विल गेट हियर एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब. बट डी स्क्वायर इज नथिंग बट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स क्यूब, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आता है 3x स्क्वायर, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आएगा 6x. सो दैट पार्ट इज जस्ट 6x. ठीक है, तो ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. सो यू कैन चेक दैट रिकॉर्डिंग ऑल्सो इफ यू वांट, एंड फाइनली विल गेट दैट आंसर टू बी yc प्लस yb. तो ये आपका लास्ट लेक्चर का पार्ट था, बस मैंने रिफ्रेश करने के लिए एक्सप्लेन किया था. नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस सेम पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज से d cube y by dx cube minus 7 divided by dx minus 6y is equal to e raised to 2x into 1 plus x. Okay, so again your first question is what, why you have to solve, or what is your method to find the general solution of this differential equation. So here you can see on RHS there is a product of two function in which one function is exponential. There is a product of two function where one function is exponential. Therefore we solve this example by using shortcut method. तो पहले आपने मेथड को आइडेंटिफाई किया. नेक्स्ट इज व्हाट, okay, so here general solution is yc plus yb. So first we need to calculate the complementary function. So for that we need to simplify this differential equation. So let's consider capital D is equal to d by dx. Therefore this given differential equation become d cube minus 7d minus 6 times y is equal to e raised to 2x in bracket 1 plus x. Now let us consider the auxiliary equation, that is d cube minus 7d minus 6 is equal to 0. Calculate its roots, okay, which is as this is a polynomial of degree 3, so you will so here you will get the 3 roots, and those roots are minus 1, minus 2 and 3. Okay, and all 3 roots are distinct, therefore the corresponding complementary function. Okay, इतना बस याद रखो, हर एक रूट के करस्पॉन्डिंग आपको बस टर्म कंसिडर करना है, हर एक डिस्टिंक्ट रूट के करस्पॉन्डिंग. सो जो फर्स्ट रूट था आपका -1, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या आता है c1 e raised to that number into x, so -1 into x, plus c2 e raised to that number into x, that is -2 into x, plus c3 e raised to 3 into x. ठीक है, and now we have to calculate the particular integral, that is yp. So yp is equal to 1 upon phi of d into f of x. So we'll put all the values of phi of d and f of x. So the value of phi of d is d cube minus 7d minus 6, and the f of x is e raised to 2x into 1 plus x. That I will show you on next slide. So if I put the values of phi of d and the function, okay, तो इसके आगे आपको ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है. ओके, सो शॉर्टकट मेथड के लिए तो फॉर्मूला में पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ. सो एज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वेयर वन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आपके पास एक रिजल्ट है शॉर्टकट मेथड में, दैट इज वन अपॉन फाई ऑफ डी e raised to x into v. This is equal to, okay, consider this e raised to x outside to this particular integral and replace d by d plus a and into this v as it is. ठीक है, that is the formula. ठीक है, so here if I apply this same formula here, so first of all we need to take this exponential term outside to this particular integral, so it become e raised to 2x, correct, and now we have to replace d by, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a is the coefficient of x, तो a क्या है यहाँ पे 2, so just replace d by d plus 2, so it become 1 upon, जहाँ जहाँ पे d था उसके जगह पे d plus 2 आना चाहिए, so 1 upon d plus 2 cube minus 7 into d plus 2 and minus 6 into this v as it is, means what, into this 1 plus x as it is. ठीक है, so I will show you here on slide. So that become e raised to 2x, d के जगह पे d plus 2 आ रहा है ना, and this remaining terms as it is. Now simplify this denominator part, means a plus b whole cube को आप simplify करो, so it is actually a cube means d cube plus 3 d square into 2, that is 6 d square plus 3 ab square means 3 d into 4, okay, and then 2 cube which is 8 minus 7d minus this 14 minus this 6. तो मैंने यहाँ पे जंप किया, okay, you please perform this numerical calculation, then you will get this simplification as d cube plus 6d square plus 5d minus 12, ठीक है, into this 1 plus x as it is. ओके, अभी इसके आगे कुछ मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होने वाला. ओके, सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला. ठीक है,
आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, इसके आगे ये जो पार्ट या ये जो वाई पी आपको मिल रहा है, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको यहाँ पे मिल रहा है, ओके, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल यू हैव टू सॉल्व बाय द प्रीवियस केसेस, ठीक है। तो प्रीवियस केसेस में कौन कौन से फंक्शन है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए सारे। तो यहाँ पे सिंस हियर ऑन RHS यू विल हैव द पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन की जो केस है उस केस से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो ओके, so using that polynomial function, first of all we need to convert this 1 upon phi of t, okay, first of all we need to convert 1 upon phi of t in terms of 1 plus 1 upon 1 plus x or 1 upon 1 plus something। तो उसके लिए आपको लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेना होगा। यहाँ पे इस टर्म की डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है, इस टर्म की डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, इस टर्म की डिग्री क्या आ रही है, 1 आ रही है। सो दिस -12 इज एक्चुअली योर लोवेस्ट डिग्री टर्म व्हिच डिग्री 0, सो जस्ट टेक -12 कॉमन। तो मैंने यहाँ पे -12 कॉमन लिया फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन यू विल गेट तो दिस -12 इज कॉमन, तो यहाँ पे उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, एंड जो भी रिमेनिंग टर्म है, रिमेनिंग क्या था ये पूरा, आई विल इरेज एवरीथिंग सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। -1/12 मैंने कॉमन लिया एंड रिमेनिंग क्या आपका ये पूरा पार्ट, सो दिस होल पार्ट डिवाइडेड बाय -12, तो वो माइनस मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, ये एक्चुअली प्लस था, ये नीचे माइनस था, तो ये माइनस मैंने बस यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है। सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। सो आई जस्ट टेक द -12 कॉमन, आप चाहो तो ठीक है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक दैट होल टर्म कॉमन, ठीक है। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपन ये क्या आ जाएगा, दिस बाई 12 -1, ओके। तो आपको फिर से माइनस कॉमन लेके इसमें कन्वर्ट करना होगा। सो इट इज एट दैट ये सेम कैलकुलेशन आने वाला है। तो अगर आप पहले -12 कॉमन लेते हो तो वो डायरेक्टली 1/1 माइनस एक्स के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। कैसे भी करो, ओके, बट एट देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट टर्म इन टर्म्स ऑफ 1/1 माइनस एक्स और इन टर्म्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स as far as polynomial functions are concerned, okay। now after this आपके पास 1/1 माइनस एक्स का फॉर्मूला है, क्या वो फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ओके। बट यहाँ पे जो आपकी पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1, सो कंसिडर एक्सपांशन अप टू डिग्री 1 ओनली, तो आपको यहाँ तक ही एक्सपांशन कंसिडर करना है, ओके। तो क्या आने वाला है आगे, 1 प्लस एक्स ओनली, सो दिस होल टर्म इज योर एक्स, सो 1 प्लस एक्स ओनली, रिमेनिंग टर्म्स आपको डिलीट करने इनटू दिस 1 प्लस एक्स एज इट इज, ठीक है। Again here this 1/12 is constant, but take outside to this bracket, so I think this become, okay, sorry, यहाँ पे एक और सिंप्लीफिकेशन करना है, ओके, ठीक है। कांस्टेंट का पार्ट लेने से पहले, as we know that this polynomial has degree 1, this is a polynomial which has degree 1, therefore all the derivatives whose order is greater than 1, है ना, आर 0, therefore all the derivatives whose order is greater than 1 are 0। तो क्या क्या डिलीट होगा, डी क्यूब डिलीट होगा, कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, डी क्यूब डिलीट होगा, d⁴ भी डिलीट होगा, एंड हियर यू विल हैव ओनली 5d/12, as this polynomial has degree 1, therefore all the derivatives whose order is greater than 1 are 0, and here you will get only 5d/12, okay। So in next step here I directly consider 5d/12, now just multiply this bracket by 1 plus x, then you will get 1 plus x plus 5d/12 into 1 plus x, ठीक है। 5/12 is a constant, you can keep this value as it is, and d of 1 plus x is actually what, d of 1 plus x is the derivative of 1 plus x, which is 1, and that gives you 5/12 only, and if you want you can simplify this, 1 plus 5/12 is 17/12, and that is your final yp। So if I add yc and yp you will get this is your final general solution, ठीक है। So this is question number 2। Is there any doubt? Any doubt? Okay, कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली बोलो, ओके। सो विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व d² - 4d + 4 टाइम्स y इज इक्वल टू e⁻x इंटू cos² x, ठीक है। सो इन सोल्यूशन अगेन why we have to solve this example by using shortcut method, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ रहा है, e⁻x इंटू v के फॉर्म में आ रहा है, तो आप शॉर्टकट मेथड से ट्राई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज स्पेशल केस ऑफ शॉर्टकट मेथड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड फॉर दैट कंसिडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज d² - 4d + 4 = 0, करेक्ट। देयरफॉर इट्स रूट्स आर 2 2, ओके। अगर आप ये कैल्सियम में ट्राई करते हो तो कैल्सियम में एक ही रूट वो शो करेगा, ठीक है। Calcium shows only one root 2, but as we know that since degree is 2,
अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वहाँ पे 2 ही रूट आने चाहिए। कैल्शियम अगर एक ही रूट शो कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका सेकंड रूट भी क्या होगा, वही होगा, 2 ही आने वाला, ठीक है। एंड नाउ जस्ट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज देयर इज ओनली वन रूट 2, therefore its correspond therefore its complementary function is e raised to 2x, and since that root is repeated 2 times, therefore consider coefficient as polynomial of degree 1, so c1 plus c2x, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। So that is all about the complementary function. Now let us consider the particular integral, that is yp is equal to 1 upon phi of t into f of x. Put the value of phi of t, which is d square minus 4d plus 4 into e raised to x cos square x, correct? And ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना है तो ठीक है, अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन चेंज नहीं होने वाला। बट ये मुझे दिखाई दे रहा है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज एक्चुअली d माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इससे और जल्दी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपको आंसर मिलने वाला है, ओके। सो दिस सिंप्लीफिकेशन इट्स एक्चुअली जस्ट टू रिड्यूस योर कैलकुलेशन, ओके। हाँ, तो as we know that this is a minus b whole square, तो मैंने उसके फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड e raised to x into cos square x, ओके। तो अब इसके आगे मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, सो लेट मी इरेज एवरीथिंग एंड हियर आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो इक्वल टू, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर e raised to x into v? e raised to x into v के लिए फॉर्मूला क्या है? पहले आपको e raised to x को बाहर लेके आना है, सो e raised to x आपका बाहर आ जाएगा। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, सो रिप्लेस d बाय d प्लस 1, जो भी कोएफिशिएंट है उससे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये बाहर आ गया और आपको ब्रैकेट में करना क्या है, जहाँ पे d था उसके जगह पे क्या आना चाहिए, d प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन में करता तो d था उसके जगह पे d प्लस 1 आना चाहिए, ये माइनस 2 एज इट इज एंड दिस होल स्क्वायर एज इट इज, एंड इंटू जो v है उसको आपको वैसे रखना है, इंटू v इज वॉट कॉस स्क्वायर x एज इट इज, ठीक है। एंड नाउ दिस बिकम e raised to x इंटू 1 अपॉन, नाउ दिस इज वॉट plus 1 minus 2, plus 1 minus 2 is actually d minus 1 whole square into cos square x, ठीक है। and if you want you can simplify this, ठीक है, that is d square minus 2d plus 1 into cos square x। ये करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में क्या करो, d के जगह पे d प्लस 1 रख दो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आपको यही मिलने वाला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इतना कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ यू सॉल्व फर्दर? इसके आगे आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके आगे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस केसेस का यूज करना है। सो कैन एनीवन टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, बाय विच मेथड और बाय विच फंक्शन और बाय विच रूल have to solve this particular integral? Anyone? इसके आगे सॉल्व कैसे करना है? यस बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, उसको cos स्क्वायर x को मतलब cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, तो ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था साइन एंड कॉस के केस में, कि साइन एंड कॉस के विद द फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस यू कैन आल्सो यूज दिस शॉर्टकट मेथड फॉर साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर फंक्शन। बट आपको चेंज क्या करना है, ओके, यहाँ पे अगर आपको कॉस स्क्वायर एक्स के लिए शॉर्टकट मेथड का यूज करना है, सो फॉर दैट जस्ट रिप्लेस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, which is equal to this 1 by 2 is constant, you can keep outside, and 1 की वैल्यू क्या है, 1 is nothing but e raised to 0x, correct, and this cos 2x as it is, so you can do this calculation. So this is equal to this e raised to x as it is, correct, 1 upon d square minus 2d plus 1, and ये क्या है, हाँ cos square x की वैल्यू क्या है, 1 by 2 times e raised to 0x plus cos 2x, this bracket complete and this outside bracket complete, as this 1 by 2 is constant, so I will take this outside to this whole particular integral, so e raised to x by 2, अभी मैं separate करता हूँ, so here you will get 1 upon d square minus 2d plus 1, this is e raised to 0x plus 1 upon d square minus 2d plus 1 into cos 2x, ठीक है। हाँ, नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ आई सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट को कैसे सॉल्व करना है और सेकंड को कैसे सॉल्व करना है, बोलो, क्योंकि ये सारा पार्ट हो गया है इसलिए मैं
कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा करने के लिए है नहीं. सो टेल मी हाउ यू सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट एंड हाउ यू सॉल्व दिस सेकंड पार्ट. बोलो फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, बोलो जल्दी से. टेल मी क्विकली. रिप्लेस डी बाय ए. हाँ बट व्हाट इज दैट ए. तो फर्स्ट में क्या करूं मैं, डी इक्वल टू क्या पुट करूं, 0. गुड. सेकंड में क्या पुट करूं, डी इक्वल टू या डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर. माइनस ए स्क्वायर मीन्स -4. तो इसके आगे आपको करना क्या है, फर्स्ट में डी इक्वल टू 0 पुट करो. ओके रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज. सेकंड में डी स्क्वायर इक्वल टू -4 पुट करो. तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में दिस होल कैलकुलेशन. मैंने बस वैसे रखा है, डजंट मैटर. ठीक है. हाँ हाँ तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट में 0 पुट करता हूँ, ओके आप देखो यहाँ पे d इक्वल टू 0 पुट करते तो यहाँ पे 1 ही रहने वाला. ओके तो फर्स्ट में 1 रहेगा. और सेकंड में अगर मैं d इक्वल टू, ये एक्चुअली सेकंड में ये था नीचे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1. तो डी स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या पुट करना है, -4 पुट करना है. सो हियर यू विल गेट -4 माइनस 2d प्लस 1 इंटू कॉस 2x. तो इसके आगे आपको सॉल्व करना है. सो yp इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट में अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो वहाँ पे 1 ही मिलेगा. ठीक है सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, सो विल गेट ओनली 1. एंड सेकंड में आपको डी स्क्वायर इक्वल टू -4 पुट करना है. सो देयर यू विल गेट -4 माइनस 2d प्लस 1 cos 2x. ठीक है अब इसके आगे मुझे एक्सप्लेन करना है. सो विच इज इक्वल टू e raised to x by 2. ठीक है दिस 1 प्लस एज इट इज, दिस यू कैन सिंप्लीफाई इनटू. So this is -3, so I will take this minus here. ठीक है माइनस में बाहर ही लेता हूँ. एंड दिस आई कैन राइट इट एज 2d प्लस 3. ठीक है -4 प्लस 1 इज -3 एंड -2d, so I will take minus common. And so 1 minus 1 upon 2d plus 3 into cos 2x. हाँ so now can anyone tell me how I solve further. इसके आगे कैसे सॉल्व करूँ, बोलो. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. करेक्ट बिकॉज दिस इज द साइन एंड कॉस फंक्शन. और कॉस फंक्शन, तो कॉस फंक्शन के लिए कंपलसरी आपको नीचे डी स्क्वायर चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं, तो आपको वो डी स्क्वायर जनरेट करना होगा. तो वो एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड दिस बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. सो दिस आई कैन राइट इट एज e raised to x by 2 and this 1 minus just multiply and divide by conjugate of this. So 2d minus 3 नीचे 2d minus 3 से मल्टीप्लाई करो, so that become a plus b and a minus b. तो अभी मैं जंप कर रहा हूँ, so it is actually 4d square minus 9. ठीक है मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2d माइनस 3. तो ऊपर 2d माइनस 3 आने वाला है, नीचे दिस 2d प्लस 3 एंड 2d माइनस 3 का कैलकुलेशन आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यू कैन वर्क ऑन दिस. ठीक है एंड नाउ अगेन रिप्लेस d स्क्वायर बाय -4. ठीक है सो हियर यू विल गेट e raised to x by 2. correct 1 minus this 2d minus 3 upon, now this is -4, d square की जो वैल्यू -4 है, so -4 into 4 it become -16. this is -9 into cos 2x. correct so which is equal to e raised to x by 2. now this 1 ये प्लस होगा और ये, so 16 plus 9 is 25. so this is 25 into 2d minus 3 into cos 2x ब्रैकेट कंप्लीट. ठीक है सो अभी मैं डायरेक्टली जंप करने वाला हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए. e raised to x by 2 1 plus 1 upon 25. अभी आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है. सो 2 into 2d ऑफ cos 2x. ओके बट d क्या होता है, डेरिवेटिव. सो 2 into डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या आने वाला है, 2 into डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या आने वाला है, cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट बिकम -4 sin 2x. करेक्ट एंड इनटू -3 cos 2x एज इट इज. ठीक है आई विल शो यू ऑल दिस पार्ट हियर ऑन स्लाइड ऑल्सो. ठीक है कहाँ तक एक्सप्लेन किया था मैंने, हाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. ठीक है फिर ऊपर आएगा 2d minus 3, नीचे 4d square minus 9. नाउ रिप्लेस d square by -4, so you will get this. so that is 25, so minus minus plus हो जाएगा 2d minus 3 of this. ठीक है so this is 2d into cos 2x minus 3 into cos 2x. but d of cos 2x is actually, derivative of cos 2x is actually -2 sin 2x, so that become -4 sin 2x, -4 sin 2x minus 3 cos 2x as it is. ठीक है एंड नाउ जस्ट ओके तो ये भी माइनस आप कॉमन लेके यहाँ पे दे सकते हो.
एंड नाउ जस्ट ऐड yc एंड yp, यू विल गेट दिस एज योर फाइनल आंसर. ठीक है, ओके. इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, या कहीं पे कुछ कोई पार्ट एक्सप्लेन करना है तो आप बोलो मुझे. ओके, ठीक है, पहले ये मेथड देखता होगा सबको समझ में आ रही है कि नहीं. इज देयर एनी डाउट, या कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है तो बोलो. यस, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट्स है मेथड में? हाँ, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था. ओके, चलो, सो एज्यूम दैट कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट केस from this method, that is x into v case. So again it is a product of two function, where one function is x and v is any other function. Okay, so what is the rule, or what is the formula, or what is the shortcut method to find the particular integral for this type of function x into v? So 1 upon phi of d into xv, फॉर्मूला क्या है? x माइनस phi, जो phi of d है उसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय दैट phi of d. So phi dash of d upon phi of d, bracket complete. Outside this bracket, 1 upon phi of d, this is the particular integral part, 1 upon phi of d into v. And again this we have to solve using previous cases. तो पहले ये सॉल्व होगा, फिर इसके बाद भी दो ऑपरेटर है. अब देखो एक मतलब ये थोड़ा लेंदी है. ओके, तो पहले आपको ये पार्ट सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद कुछ तो से g ऑफ x मिल जाएगा. ठीक है, फिर आप उस g ऑफ x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट x into g ऑफ x माइनस ये phi dash of d भी एक ऑपरेटर है एंड 1 upon phi of d भी एक ऑपरेटर है, एंड ये मल्टीप्लाई होगा g ऑफ x के साथ. तो इसमें भी पहले ये पार्ट सॉल्व होगा, फिर आपको कुछ h ऑफ x मिल जाएगा, फिर ये h ऑफ x phi dash of d पे ऑपरेट होगा, देन यू विल गेट दैट फाइनल वैल्यू एज k ऑफ x. इतना वो कैलकुलेशन है. तो आई थिंक यहाँ पे टोटल 3 ऑपरेटर है ना. ये 1 upon phi of d, दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेटर. फिर ये 1 upon phi of d नीचे का, दिस इज योर सेकंड ऑपरेटर. और ये जो न्यूमरेटर का आ रहा है, दिस इज योर थर्ड ऑपरेटर. सो 3 टाइम्स आपको सॉल्व करना है यूजिंग द प्रीवियस केसेस, देन ओनली विल गेट दैट फाइनल आंसर. सो आई विल डायरेक्टली टेक वन एग्जांपल सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस मेथड. ठीक है, ओके. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व d2y by dx square plus 4y is equal to x into sin x. So again you can see this on RHS, you will have the product of two function, where one function is x and v is any other function. तो इसलिए आपको ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, तो उसके पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री कैलकुलेट करो. सो टू कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंसीडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन. ओके, अभी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है क्योंकि अभी आपको पता है क्या क्या पुट करना है, तो वो स्टेप्स आपको लिखने हैं सारे. ओके, बट अभी इनिशियली सारे एग्जांपल मैंने रिपीट किया था. सो नाउ आई जस्ट डू लिटिल बिट जंप इन द स्टेप्स. सो कंसीडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज d square plus 4 times y is equal to this. Therefore your auxiliary equation is d square plus 4 equal to 0. Therefore your roots are d equal to plus or minus 2y. there is only one root. Therefore its complementary function is, रियल पार्ट इज 0, सो e रेस टू 0x. इसके करस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है? e रेस टू 0x, रियल पार्ट इज 0. c1 इमेजिनरी पार्ट इज 2, सो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, वही मैंने नीचे लिखा है. ठीक है, so this is all about the complementary function. Now consider the particular integral, that is 1 upon phi of d into f of x. Put the value of phi of d which is d square plus 4 and put the value of f of x which is x into sin x. अब इसके आगे एक्सप्लेन करना है मुझे. ठीक है, so मैन्युअली एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में स्लाइड में वैसे भी मैं आपको शो कर सकता हूँ. ओके, सो नाउ ओके, तो आपको x इंटू वी का रिजल्ट अप्लाई करना है. ओके, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 अपॉन पाई ऑफ डी x इंटू वी का रिजल्ट क्या है आपका? व्हाट इज दैट रिजल्ट? x माइनस फाई डैश ऑफ डी अपॉन फाई ऑफ डी इंटू 1 अपॉन पाई ऑफ डी इंटू वी. ओके, सो लेट मी अप्लाई दिस रूल हियर. क्या करना है पहले? इक्वल टू x माइनस फाई डैश ऑफ डी, क्या है डेरिवेटिव? डी स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या है? 2d. नीचे दैट होल टर्म डी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट कंप्लीट. आउटसाइड दिस ब्रैकेट 1 अपॉन दैट होल टर्म डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वी. वी क्या है? साइन x. ठीक है, एंड नाउ ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके,
दिस पार्ट यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग प्रीवियस केसेस, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट आपको जो सॉल्व करना है वो प्रीवियस केसेस सॉल्व करना है। तो कौन से केसेस सॉल्व होगा, साइन एंड कॉस का पार्ट है, तो आपको करना क्या है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर, बट ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वो 1 है ना, तो ए की वैल्यू क्या है 1, सो रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -1, सो दिस बिकम इक्वल टू x माइनस दिस इज 2d अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू, है ना, डी स्क्वायर को मैंने रिप्लेस किया -1 से +4 से, अभी ठीक है या डायरेक्ट लिखो अभी मैं, चलो ठीक है, साइन एक्स, सो दिस इज इक्वल टू, ओके। अब ये जो कांस्टेंट है इसको मैं बाहर ही लेके आता हूँ, कोई इसका रोल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली -1/3, लेट मी टेक दिस आउटसाइड टू दिस, 1/3 में बाहर लिखता हूँ, और साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो, सो एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2d एक ऑपरेटर है, ठीक है, तो मैं सेपरेट लिख रहा हूँ अभी, 2d भी एक ऑपरेटर है, एंड 1 अपॉन, या ठीक है पहले रहने दो, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू दिस साइन एक्स, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, डी स्क्वायर साइन एक्स का टर्म था तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया, दैट इज -1 से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे 1/3 आ रहा है, वो मैंने बाहर लिया है, फिर साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो पार्ट मुझे सॉल्व करना है यहाँ पे, ये जो पार्ट आ रहा है इसमें 2 ऑपरेटर है, एक क्या आपका 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 के लिए शॉर्टकट रूल है आपके पास, डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करना है, एंड फिर इसके बाद 2d के ऊपर ऑपरेट करना है, सो आई विल एक्सप्लेन 1 by 1, सो इक्वल टू दिस 1/3 एज इट इज, ठीक है, x sin x as it is, and now these are 2 operator, one is 2d, second is 1 upon d square plus 4 and into this sin x, ओके। अभी फॉर्मूला में अभी के लिए इरेज करता हूँ क्योंकि आपको पता है वो मैं ऊपर अप्लाई किया है, ओके हाँ। एंड नाउ अगेन फॉर दिस पार्ट जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, नाउ फॉर दिस पार्ट दिस इज द स्पेशल केस ऑफ शॉर्टकट मेथड, साइन एंड कॉस का फंक्शन है, तो आपको फिर से रिप्लेस करना है डी स्क्वायर को बाय -a स्क्वायर, बट a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 साइन एक्स में, सो अगेन डी स्क्वायर को रिप्लेस करो -1 से, एंड देन यू विल गेट हियर 1/3, सॉरी ठीक है 1/3 x साइन एक्स माइनस दिस 2d एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अभी -1 से रिप्लेस करते हो तो यहाँ पे क्या आने वाला है 1 अपॉन -1 प्लस 4 इंटू साइन एक्स, ठीक है, एंड नाउ दिस बिकम 1/3 x इंटू साइन एक्स, अब ये 1/3 है, 1/3 और ये -2, सो -2/3, नाउ d ऑफ साइन एक्स, d क्या होता है, d इज द डेरिवेटिव, सो d ऑफ साइन एक्स मीन्स फॉर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज cos x, हो गया, ठीक है। आई विल शो यू दिस आंसर, तो ये आपका रूल है, करेक्ट, दिस इज योर फॉर्मूला x इंटू वी के लिए, तो x माइनस दैट डेरिवेटिव 2d बाय डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स, एज इट इज साइन एक्स फंक्शन, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -1, तो यू विल गेट हियर -1 प्लस 4 दैट इज 1/3, as it is a constant you can take outside to this particular integral, in remaining terms as it is, now multiply this bracket term by sin x, you will get x sin x into this, again there are 2 operator, one is 2d and second is d square plus 4, but जो नीचे था उसमें आप क्या कर सकते हो, d square को रिप्लेस कर सकते हो -1 से, ठीक है, तो नीचे आप क्या कर सकते हो, d square को रिप्लेस कर सकते हो -1 से, तो you will get something like this which is 3, so 2d/3 into sin x, okay, which is nothing but d of sin x, d of sin x is the derivative of sin x which is cos x, and that is your final answer, and now just add yc and yp, that gives you the final general solution of this differential equation, ठीक है। and what I will do, I will take one more example and then we'll discuss the doubts on this method, ठीक है, ये next lecture में भी continue होगी, कुछ part रहेगा शायद, okay। now question number 2, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्व d2y by dx square minus 4y is equal to x into cos hyperbolic x, ठीक है, okay। So again here you can see on this RHS there is a product of 2 function in which one is x, second is any other function, इसलिए आपको ये क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले आपको
चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. फॉर दैट कंसिडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना. देयरफॉर इट्स रूट्स आर प्लस और माइनस 2. दिस रूट्स आर रियल एंड दे आर डिस्टिंक्ट. ठीक है. देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e raised to 2x plus c2 e raised to minus 2x. नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5 of d into f of x. तो 5 of d की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4 एंड f of x की वैल्यू क्या है, x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x. ओके, अब ये रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ. सो 1/d स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स कॉस हाइपरबोलिक x. ठीक है. रिजल्ट आपका क्या है, रिजल्ट आपका क्या है, आपको क्या करना है, x माइनस 5 of d अपॉन 5 of d. ठीक है. इन ब्रैकेट कंप्लीट 1/5 of d इंटू एफ ऑफ एक्स. ये आपका रिजल्ट है. सो अब देखो x माइनस डेरिवेटिव 2d अपॉन दैट होल टर्म इंटू 1/d स्क्वायर माइनस 4 कॉस हाइपरबोलिक x. ठीक है. अब ये जो पार्ट है ये आपको प्रीवियस केस से सॉल्व करना है. कॉस हाइपरबोलिक x में आप क्या करते हो, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हो, बट a की वैल्यू 1 है. सो इट बिकम 1/1 minus 4 into cos hyperbolic x. Okay, so that is the constant which is 1/-3. आप उसको चाहो तो बाहर लेके आ सकते हो, x minus 2d by d square minus 4 into cos hyperbolic x. फिर आप cos hyperbolic x से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो. then you will get x into cos hyperbolic x minus 2d upon d square minus 4 into cos hyperbolic x. अगेन यहाँ पे दो टर्म्स है, एक 2d है, सेकंड इज 1/d स्क्वायर माइनस 4 है. तो 1/d स्क्वायर माइनस 4 ने सेम होगा जैसे प्रीवियसली किया था, डी स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 से रिप्लेस करना है. सो नेक्स्ट स्टेप में इसमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है प्लस ए स्क्वायर एज इट इज अ कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. अगेन दिस इज अ -3, ये प्लस हो जाएगा, -3 और माइनस साइन. सो 2d/3 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x. ये सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस का ही है. and d of cos hyperbolic means derivative of sin cos hyperbolic which is sin hyperbolic. and now just add yc and yp, that completes the question. तो अगर आपने प्रीवियस समझ में आ रहा है तो ये सिमिलर था, बस मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चेंज किया, बाकी कुछ नहीं. ठीक है. एंड ये जो टाइप है मिसलेनियस और द मिक्स क्वेश्चंस, random questions on this shortcut method, that I will take in next lecture. So here I can say that this is all about shortcut method. Only the miscellaneous part is remaining, that I will take in next lecture. So tell me if you have any doubt up to this part, not only in this method, क्योंकि यही आपको अभी क्विज के लिए रेडी करना है. So is there any doubt from your side, या कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, any doubt from your side?